Hello dear student, today we are starting our new chapter, that is the 13th number, MEC, that is a magnetic effect of electric current. What is it? You can say it is magnetic effect of electric current. Okay friends, so what is the magnetic effect of electric current friends? सो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था ऑस्टर्स। ओके, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। राइट, द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन और ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। राइट, तो उसके एक्सपेरिमेंट में क्या था? तो उसके एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, सपोज ये एक बैटरी, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि ओके, एंड यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे एक कंडक्टर। राइट, यू कैन से इट इज अ कंडक्टर, राइट, you can say it is our conductor like this. Okay, now here it is a L, that is a length of the कंडक्टर, और यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं। व्हाट इज इट? इट इज अ मैग्नेटिक कंपास विच इज अ प्लेस हियर, that is near the length of the conductor. Right, अब यहाँ पर इनिशियली हम करंट पास नहीं कर रहे हैं। राइट, then here we can say that this magnetic needle is parallel to the length of the conductor. What magnetic needle is parallel to length of the conductor. अब यहाँ पर जैसे ही हमने ये की जो है वो इंसर्ट की, राइट, यहाँ पर ये की हमने इंसर्ट की, then this magnetic needle set itself perpendicular. ओके, मतलब क्या हुआ? ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ। इनिशियली दिस मैग्नेटिक नीडल इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नाउ आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इट सेट इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज हियर द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। व्हाट यू कैन से यहाँ पर हुआ, दैट इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ magnetic needle. So what is the conclusion? The conclusion is that on passing electric current through conductor, what? On passing electric current through conductor, some magnetic field produced. What you can say? On passing electric current through conductor, magnetic field produced. Okay, so it is known as Oster's observation. Okay, so यहाँ से जो हमारा टॉपिक है MEC उसका स्टार्टअप हुआ है। Okay, so what was Oster's observation? So on passing electric current through conductor, some magnetic field produced. So this phenomena or this observation is known as Oster's observation. Experiment is known as Oster's experiment. Right, friends? Now we'll consider a magnet. Okay, और मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। राइट, सो यहाँ पर अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ मैग्नेट। सो मैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। राइट,
सो हियर फर्स्ट कि सपोज ये है हमारा मैग्नेट, राइट? Magnet is suspended, bar magnet is suspended from this rigid support. You can say it is a north pole, you can say it is a south pole. Okay. So what happened here? When magnet is suspended by means of rigid support, then this magnet aligned towards the north and south direction. Okay. मतलब यहाँ पर ये है north direction और ये है south direction. The pole towards the north direction is known as north pole and the pole towards the south direction is known as south pole. Okay, the pole towards the north direction is known as north pole and the pole towards the south direction is known as south pole. Okay, दूसरी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ लाइक पोल. तो लाइक पोल के बीच में क्या होगा फ्रेंड्स? तो लाइक पोल के बीच में होगा रिपल्जन. ओके, एंड सपोज अनलाइक पोल है, दैट इज अ नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ. ओके, सो दिस आर अनलाइक पोल. ओके, सो अनलाइक पोल में होगा attraction. क्या होगा? Attraction, right? So here like pole, that is a north south, so here repulsion is there, and unlike pole then there is a attraction, right? So these are the property of the magnet, right? अब ये जो मैग्नेट है उसका एक फील्ड होता है कि जहां पर ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है या फिर मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लग रहा है. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर फील्ड है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड. क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन हियर फ्रेंड कि यहाँ पर सपोज हम ये डायग्राम कंसीडर करते हैं. ओके, चलो ये डायग्राम को हमने कंसीडर किया. सो अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है कि सपोज यहाँ पर हमने कोई एक कार्डबोर्ड कंसीडर किया है, राइट? सपोज इट इज अ कार्डबोर्ड और यहाँ पर कार्डबोर्ड है और यहाँ पर हमने एक मैग्नेट को रखा है. ओके, हियर वी कंसीडर अ मैग्नेट. ओके, you can say it is a north pole and you can say it is a south pole. मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब यहाँ पर हम आयरन रस्ट स्प्रेड करेंगे. क्या करेंगे? हम यहाँ पर आयरन रस्ट को स्प्रेड करते हैं और यहाँ पर हम टैप करेंगे, राइट? क्या करेंगे? टैपिंग करेंगे कार पर. तो क्या होगा कि ये जो आयरन रस्ट है वो अपने आप को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइन करेंगे. क्या करेंगे? आयरन रस्ट अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेंगे. तो ये जो है उसको हम कहेंगे फील्ड लाइन. व्हाट यू कैन से? यू कैन से इट इज अ फील्ड लाइन, राइट? तो ये जो फील्ड लाइन है वो क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओके, तो हियर ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन जनरली कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं लाइक दिस. okay, so it is an north pole, it is a south pole, so it is a starting from the north pole and here outside the magnet it move from north pole to south pole and inside the magnet it move from south pole to north pole. That is by this way it complete one loop. क्या करेगी? ये अपनी एक लूप को कंप्लीट करेगी. ओके, तो वंस अगेन फ्रेंड्स कि यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं ये जो मैग्नेट है. तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या देखा? तो फर्स्ट वन, तो मैग्नेट हैविंग अ टू पोल, one is a north and another one is a south. Okay, so here this magnetic field और मैग्नेट में हमने देखा कि अगर लाइक पोल है तो रिपल्जन होगा एंड अनलाइक पोल है तो अट्रैक्शन होगा. ओके, एंड इट इज अ फोर्थ पोर्ट, दैट इज व्हेन we suspend a bar magnet from rigid support, then it align towards the north pole and south pole. Okay, so here first point,
that is every magnet has two poles. Okay, that is north and south. Second one, अगर like pole है that is a north north south south, then repulsion. Unlike pole है north south, then it is the attraction. And fourth one, that is when you suspend bar magnet from rigid support, then it align towards the north and south direction. Okay, तो ये है मैग्नेट की प्रॉपर्टी. उसके बाद हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट. अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो जस्ट फोकस हियर. सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, सो हियर वी कैन से इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये है magnetic field line. It is one of the very important topic, no friends. Magnetic field line. So magnetic field line में it starting from north pole and ending towards the south pole. कि suppose यहाँ पर हम consider करते हैं ये magnet. Okay, you can say it is the north pole and it is the south pole. So it starting or emerge from north pole, move towards the south pole outside the magnet, and inside the magnet it move from south pole to north pole, north pole to south pole, inside the magnet south pole to north pole. Okay, same way, north pole to south pole, south pole to north pole, right. So it is like this. Okay, so here it is the direction of magnetic field, फील्ड लाइन. ओके, अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो कोई भी पॉइंट पर मैं क्या प्लॉट करूंगा, टेंजेंट. सो टेंजेंट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, व्हाट हैपन हियर, टेंजेंट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field. Then next one, the magnetic field line never intersect each other. Okay, this magnetic field line never intersect each other. क्यों? सपोज यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि दे इंटरसेक्ट. ओके, सपोज हमने ये पॉइंट पे कंसीडर किया दे इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, देन वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so it is not possible. That's why they never intersect each other. Okay, so these are the property of magnetic field line. So once again we'll see it. First property, so magnetic field line arise from magnetic field line arise from north pole and end into south pole of the magnet and move toward south pole. It is outside the magnet, outside magnet, and inside it move from south pole to north pole. Okay, second point, this magnetic field line are closed curve. Magnetic field line are closed curve. Third one, they are equidistant. They equidistance and parallel to
each other, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. ओके. फोर्थ नंबर, एट एनी पॉइंट, at any point tangent give us direction of magnetic field. Fifth one, this magnetic field line never intersect each other. Never intersect each other. ओके. वाई? तो यहां पर हमने देखा था कि सपोज दे इंटरसेक्ट, suppose they intersect, then at point of intersection we have two different direction of magnetic field which is not possible. Okay friends, so these are the property of magnetic field line, right? What friends, this is the property of magnetic field line. Okay. Now नेक्स्ट पॉइंट फिर से एक बार हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं. तो फर्स्ट हमने पढ़ा ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट वाज ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन? ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन सेज दैट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. ओके. देन नेक्स्ट वन हमने मैग्नेट के बारे में देखा. तो विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट? So first property, that is every magnet has a two pole, that is the one is a north and another one is a साउथ पोल. ओके. मतलब अब मैग्नेट का कोई भी एक डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो, राइट? सपोज वी हैव अ लाइक पोल, दैट इज अ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, तो रिपल्जन होगा. थर्ड प्रॉपर्टी नॉर्थ साउथ, दैट इज अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होगा. फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज ऑन suspended a bar magnet from rigid support, it aligned towards the north direction and south direction. Okay. एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि what is the unit of magnetic field? So unit of magnetic field is Tesla. Okay, it is denoted by T. Next one, that is a magnetic field line. So magnetic field line में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ये क्या था हमारा एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक हमने कार्डबोर्ड लिया और ये कार्डबोर्ड के बीच में यहाँ पर एक मैग्नेट रखा नीचे की तरफ, उसके ऊपर कार्डबोर्ड, और यहाँ पर हमने आयरन रस्ट को स्प्रेड किया. ऑन टैपिंग इट तो हमें कुछ इस तरह से कुछ लाइंस मिलेंगी. ओके. तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन. क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक field lines. So magnetic field lines are emerged from north pole, move towards the south pole outside the magnet, and inside the magnet they move from south pole to north pole. Okay. इस तरह से north pole to south pole outside the magnet, inside the magnet south pole to north pole, right? So here these are the property. The magnetic field line arise from north pole, move towards the south pole outside the magnet, and inside from south pole to north pole. Magnetic field lines are closed curve. They are equidistant and parallel to each other. At any point, tangent gives us the direction of magnetic field. यहाँ पर हमने tangent draw किया, so it gives us the direction of magnetic field. Fifth one, that is a magnetic field line never intersect each other. Suppose they intersect, then at a point of intersection we have a two different direction of magnetic field, which is not possible. Okay friends. Next point पर जाते हैं. That is a magnetic field due to current carrying wire. Okay. What is the name of the topic? You can say magnetic field due to current carrying wire.
Okay, so here what is the magnetic field due to current carrying wire? तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स, कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हम एक कार्डबोर्ड कंसीडर करेंगे और ये कार्डबोर्ड में से ये वायर हमने पास किया, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया है ये कार्डबोर्ड, और ये कार्डबोर्ड में से हमने ये वायर एक पास किया। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, राइट। देन व्हाट हैपन, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। दैट इज हियर on passing electric current through conductor magnetic field produce, okay। अब यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, so here you can say that the direction of magnetic field is also get reverse, के फॉर एग्जांपल ये कंसीडर करो, ओके। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, ओके। सो यहाँ पर हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया है, राइट। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है ईस्ट की तरफ, ओके। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, अब यहाँ पर ये बी डायग्राम में कंसीडर करते हैं नेगेटिव, ओके। तो हमारे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? रिवर्स हो गया, ओके। दैट इज ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट the direction of magnetic field is also get reverse, okay, वो भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, राइट। so here we can say it is like this, okay। ये तीन डायग्राम आपको प्लॉट करने हैं, okay। so here on passing electric current through conductor magnetic field produce, okay। on reversing direction of current, direction of magnetic field is also reverse, okay। अब यहाँ पर एक इक्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। दिस इक्वेशन इज नॉट इन योर सिलेबस और नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, ये 12th का एक इक्वेशन है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसे होगा और इसका कौन सा इक्वेशन है। तो इसका इक्वेशन है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई। तो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, वो आपको भी टेंशन नहीं लेना है। 2 पाई है कांस्टेंट, दैट इज हियर यू कैन से दैट B इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन Y। Y क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि यहाँ से ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस जो है, कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं ये पॉइंट, तो ये है डिस्टेंस y, ओके। सो यहाँ पर हम कहेंगे दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। विच वन? द फर्स्ट वन, it is a directly proportional, it is a directly proportional to electric current, it is directly proportional to electric current, and second one, it is inversely proportional to डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस के? जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन दिस 2 फैक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ओके। ये इक्वेशन है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, वंस अगेन आई रिपीट, इट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, बराबर है।
So it is a magnetic field due to current carrying wire, right friends? So it is also one of the very important topic. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कि यहां पर अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, सो इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. कैसे दिखाई देगा हमें? इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. सो व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? कि सपोज ये राइट हैंड हमने कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ है, राइट? सो ये थंब की डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. तो ये फिंगर की डायरेक्शन में क्या होगा? फिंगर की डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड. फिंगर की डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड. कि फॉर एग्जांपल सपोज हियर वी कंसीडर it is a direction of electric current. Okay, then suppose हमने प्लॉट किया है कुछ इस तरह से. Okay, so it is like this. So suppose I can say कि अगर मैं ये ऊपर की तरफ ले रहा हूँ, okay, so it is the direction of current, then it will be the direction of magnetic field line. Okay, अगर मैं सिचुएशन को रिवर्स कर देता हूं, ओके, सिचुएशन को रिवर्स कर देना है मतलब अगर यहां पर ये है लाइक दिस, ओके, सपोज यू कैन से इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज अ करंट. ओके, तो क्या होगा? आप राइट हैंड थंब को इस तरह से रखो, ओके, कि फॉर एग्जांपल हमने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहा है, राइट? ओके, तो ये फिंगर मतलब ये डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, मतलब ये होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके फ्रेंड्स, सो हियर इट इज अ राइट हैंड थंब रूल. ओके, यहाँ पर इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में किया. ओके, तो ये इस तरह से हो गया, राइट फ्रेंड्स? so it is the direction of magnetic field line. Okay, so it is like this. so अगर ये अपने आप आपको करके देना है, मतलब करके देखना है कि किस तरह से होता है. so जब भी आप मतलब अपने आप प्रैक्टिकली करोगे देन यू हैव क्लियर आइडिया. बट यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इट इज अ राइट हैंड थंब रूल. कि यहाँ पर थंब को कहाँ पर रखना है? कि थंब की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक करंट, देन फिंगर जो टर्न होंगे वो डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मतलब यहाँ पर मिलेगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड. सो फिंगर की डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब की डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक करंट, राइट? देन इट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल. व्हाट यू कैन से? इट इज राइट हैंड थंब रूल, right friends? So it is one of the very important. Now next point, that is a magnetic field due to loop. बराबर, लूप और रिंग. magnetic field due to current carrying loop. तो यहां पर भी सपोज हम एक कार्डबोर्ड कंसीडर करते हैं, ओके, और यहां पर हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, राइट? फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट. मतलब ये पॉइंट क्या है कि यहां पर ये जो पॉइंट है
यहां से सपोज हमने एक वायर की लूप बना के कंसीडर की है, इस तरह से हमने लूप बनाई हुई है, राइट। और ये लूप में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ओके, हियर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दिस लूप, मतलब यहां से करंट जाएगा ऊपर की तरफ, यहां पर जाएगा नीचे की तरफ। ओके, अगर यहां पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर ये डायरेक्शन में, राइट, और यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो आपको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, मतलब राइट हैंड रूल यहाँ पर आपको थंब अप्लाई करके देखना है कि नीचे की तरफ जा रही है, तो ये होगा कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वायर हुए, अगर वायर है तो एक ही है, बट यहाँ पर कितने वायर हो गए, दो वायर हो गए, तो ऑब्वियस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, वायर से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, राइट फ्रेंड। तो इट विल बी स्ट्रांग देन द वायर, कि इस तरह से है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये एक लूप है, ओके, और यहाँ पर हमने ये कार्डबोर्ड रखा इस तरह से, और यहाँ पर हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हुआ। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से ये लूप है, ओके, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट है, मतलब साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ये एक पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, कि यहाँ से लूप बाहर आती है और यहाँ से लूप अंदर जाती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ये बीच में ज्यादा होगा कंपेयर टू वायर, राइट। सो इट इज लाइक दिस। तो ये लूप एक टर्न है, इसके नंबर ऑफ टर्न भी हो सकते हैं, राइट फ्रेंड। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, ये एक इक्वेशन है, ओके, ये इक्वेशन के बेस पर है। ओके, वंस अगेन दिस इक्वेशन यू विल डिराइव इन 12th स्टैंडर्ड, राइट नाउ ऐसा कोई भी इक्वेशन आपको नहीं प्रिपेयर करना है। ओके, सो म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, टू इज अ कांस्टेंट, आर इज अ रेडियस, वो भी कांस्टेंट है। ओके, सो बी इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड आई, ओके, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब रेडियस जितनी कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, राइट, बट वो हम अभी कंसिडर करते नहीं है, राइट फ्रेंड्स। सो हियर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, राइट फ्रेंड। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन अ केस ऑफ दिस magnetic field line, sorry, magnetic field is directly depend on the current passing through it, and it is directly proportional to number of turn. Okay, that is here you can say that B is proportional to N and I. Okay, so यहाँ पर जो magnetic field produce हुआ, so this magnetic field depends on which factor? The first one directly proportional to electric current, and second one it is directly proportional to number of टर्न, मतलब नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, राइट फ्रेंड।
सो इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। क्यों ज्यादा होगा वायर से, ये भी हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, मतलब दो वायर के केस मिलेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड एडिशन में रहेगा, दैट्स वाई it is a increase। और magnetic field is depends on, it is a directly proportional to electric current and it is a directly proportional to number of turn, right friends। Our next point, that is the solenoid। So what is the meaning of solenoid? Okay, so solenoid, that means एक इजी एग्जांपल मैं कहूं कि सपोज आपने पेन की जो स्प्रिंग देखी है, सो द स्प्रिंग इज नॉन एज सोलेनॉइड। ये स्प्रिंग को हम क्या कह सकते हैं, सोलेनॉइड कह सकते हैं, राइट। और यू कैन से दैट व्हेन कंडक्टिंग वायर wound round in helical shape and number of turn close to each other, then this arrangement is known as solenoid, right? So what is the definition of solenoid? So here you can say a coil of many circular turn, a coil of many circular turn of insulated wire, suppose हम copper wire consider करते हैं, of insulated copper wire wrapped closely in a shape of cylinder, in a shape of cylinder is known as सोलेनॉइड, राइट। मतलब यहाँ पर जो वायर है इस तरह से क्लोजली है, राइट, लाइक दिस इन सिलिंड्रिकल शेप। ओके, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये कोई भी मटेरियल हो सकता है इनसाइड, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो आप 12th में सब देखोगे डिटेल में। ओके, तो यहाँ पर सोलेनॉइड में एक लूप से बहुत ज्यादा, बहुत सारे लूप है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न है। ओके, तो ऑब्वियस ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्या होगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, राइट। तो यहां पर हमारे पास सोलेनॉइड के लिए इक्वेशन है B इज इक्वल टू mu naught Ni। what is the N is equal to number of turn पर यूनिट लेंथ, के एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं उसको हम कहते हैं एन। दैट इज बी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड बी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो वंस अगेन दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहां पर सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा is directly depends on two factor, it is a directly proportional to, it is directly proportional to electric current, and second one, it is directly proportional to number of टर्न। मतलब नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट दिस solenoid। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी लर्न दिस थ्री प्रॉपर्टीज। ओके, कौन कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, उसके बाद हमने देखा राइट हैंड थंब रूल, then magnetic field due to current carrying loop, and then solenoid। okay friends, so this all topics are very important
आपको परफेक्टली समझना है, एक दो बार वीडियो को लूप में देखना है, ओके, रीड करना है और अपनी एक नोट्स भी आपको बनानी है, राइट। सो इन बिटवीन, बाय द वे, ये वीक में कोई भी एक टाइम पर हम लाइव सेशन ले लेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है सो विल सॉल्व इट, ओके। टुडे वी कीप